Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to grade 10 biology class. Today we are going to complete chapter number 10, which are mentioned on pages 14 and 15. In today's topic, we are going to first complete lung cancer and then afterwards bad effects of smoking. So today's first topic is lung cancer. Basically, lung cancer is a disease of uncontrolled cell division. So it is a disease of uncontrolled cell division. And where this disease normally found or occurs in the lung tissue. So therefore it is called lung cancer because it affects the lung tissues. Now what happened to the lung tissues? That the cells of tissues or cells continue to divide without any control, that without any cell division. And finally forms a type of tumor that is called malignant tumor. Malignant tumors, because these are the tissues which are not under the control of proper cell division and they form uncontrolled division, and this division normally causes or forms tumors. And the type of tumors which are normally seen in the case of lung cancer is malignant tumor. लंग कैंसर फेफड़ों के कैंसर की एक ऐसी बीमारी है जिसमें लंग टिश्यूज़ जो हैं वो सेल डिवीज़न के अमल से गुज़र तो रहे होते हैं, लेकिन ये डिवीज़न अनकंट्रोल हो जाती है, यानी काबू से बाहर हो जाती है, इस पर काबू नहीं पाया जा सकता, जिसकी वजह से जो लंग्स के सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ सेल्स होते हैं वो मुसलसल डिवाइड के अमल से गुज़रते हैं और इस डिवीज़न के नतीजे में वो एक ऐसा कलेक्शन ऑफ सेल्स या मैस ऑफ सेल्स बनाते हैं जिन्हें मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहा जाता है। इन ट्यूमर्स की ख़ास बात ये होती है कि नॉर्मली दे इन्वेड अदर टिश्यूज़ एज वेल, दे इन्वेड अदर एडजेसेंट टिश्यूज़, यानी ये लंग के टिश्यूज़ के अलावा भी इनका ख़तरा होता है कि ये फैल जाते हैं, ये अपनी जगह पर कायम नहीं रहते। सो बियॉन्ड द लंग्स ये फैलने वाले ट्यूमर्स हैं, और जो फैलने वाली जो कंडीशन होती है जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं वो बेसिकली मैलिग्नेंट ट्यूमर से ही रेफ़र है। और इस तरह के ट्यूमर्स जो कि अपनी जगह पर लोकेटेड ना हो, अपनी जगह पर कायम ना हो, बल्कि दूसरे टिश्यूज़ को भी मुतासिर करें, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहलाते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को दूसरी सूरत में आप कैंसरस सेल्स भी कहते हैं, यानी ये एक कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस करने वाली बीमारी है और इसी वजह से इसको लंग कैंसर का भी नाम दिया गया है। After knowing about what is lung cancer, the second heading which you are going to give is symptoms. That what are the signs and symptoms of this disease? So the most important symptoms of this disease include, first of all, shortness of breath. Shortness of breath, यानी सबसे पहले जो अलामात नज़र आती हैं वो है सांस में दुश्वारी, यानी सांस मुश्किल से ली जाती है। नंबर 2, coughing and especially coughing of blood, खांसी का आना और खांसी के साथ खून का आना भी इसकी एक
शदीद अलामात में शामिल हैं। इन तमाम कंडीशन के बाद जब पेशेंट अपना वज़न नॉर्मली चेक करता है या चेक करवाए तो उसके वज़न में भी काफ़ी फ़र्क आता है। एंड द थर्ड सिम्टम इज़ वेट लॉस, यानी वज़न में कमी। As we know that lung cancer is a disease of uncontrolled cell division in which by mitosis one cell divides into two, but in case of this disease one cell divides more than 2 or 3 and 4 cells. So in this way the cancerous mass is produced inside the lung tissues and which in turn causes cancer. Now we are going to discuss the causes or main causes of lung cancer. So what are the main causes of lung cancer? First of all, the lung cancer is produced or is caused by some chemicals which are called carcinogens. These chemicals are actually the cancer producing agent. Cancer producing agents or chemicals. Basically, these chemicals or agents are mostly found in the cigarette smoke. Where they are found? In the cigarette smoke. And cigarette smoke contains over 50 known carcinogens. How many carcinogens are present in the cigarette smoke? Over 50 known carcinogens. So one of the most common cause of lung cancer is carcinogens. Now along with it we also know some other causes. For example, ionizing radiation. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे अहम वजह जो लंग कैंसर की हम पीपल में या इंसानों में पाई जाती है वो कार्सिनोजेंस है। और ये कार्सिनोजेंस क्या हैं? ये कैंसर पैदा करने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं और इनकी एक बहुत बड़ी मिकदार तादाद सिगरेट स्मोक यानी सिगरेट के स्मोक में या सिगरेट में पाई जाती है। और इनमें ज़्यादातर यानी तकरीबन 50 से ज़्यादा जो केमिकल्स होते हैं सिगरेट के अंदर वो कार्सिनोजेंस हैं। इसके अलावा आयनाइजिंग रेडिएशन से मुराद ये है कि जो लोग ज़्यादा किसी भी बीमारी के लिए एक्सरेज करवाते हैं तो आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या हैं? यानी ज़्यादातर रेडिएशन के ज़ेर असर रहते हैं, चाहे वो रेडिएशन एक्सरे की मशीन से हों या किसी भी किस्म की दूसरी ऐसी लेज़र लाइट्स वगैरह से जिनसे खुदा ना वास्ता बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने की शक्ल में जिस्म के इस हिस्से में यानी लंग्स में कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द लंग कैंसर इज़ द वायरस। सो वायरल इन्फेक्शन मेनली in the respiratory tract can cause lung cancer. Along with it, we must know that main reason is the cigarette smoke. So, due to the cigarette smoke, as we can say, the risk of lung cancer is significantly higher as compared to the non-smokers. Or we can also say that in non-smokers, the risk of lung cancer is lower as compared to the smokers. So therefore we can conclude here that cigarette smoke contains over 50 known carcinogen and that's why the cigarette smoke is main cause of lung cancer. Along with it you have to write one more heading and it is passive smoking. Now what is meant by passive smoking? This will become your next heading, which in turn is the main part of the cigarette smoke, which is the main cause of lung cancer. Now what is passive smoking? It is basically the inhalation of smoke from another smoking. Now what is the meaning of this? Another smoking. Meaning of this is कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे एक इंसान
सिगरेट पी रहा है और सिगरेट पीने से जो स्मोक उसका निकल रहा है वो कोई दूसरा जो है वो नॉन स्मोकर इनहेल कर रहा है। कहने का मकसद है कि एक इंसान जो सिगरेट पी रहा है और दूसरा इंसान जो उसके पास खड़ा है और सिगरेट नहीं पी रहा, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है या ज़्यादा इफ़ेक्ट किसको पड़ेगा, सिगरेट पीने वाले को या उस इंसान को जो सिगरेट नहीं पी रहा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक सिगरेट की जो एक स्ट्रक्चर है या डायग्राम अगर हम आपके सामने ड्रॉ करें तो ये सिगरेट के दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा जिससे स्मोकिंग की जाती है और दूसरे हिस्से से बाकायदा तौर पे जो है वो स्मोक खारिज होता है। सपोज़ कि ये आपका स्मोक निकल रहा है सिगरेट से। अब यहाँ पर आपको जो एंड होता है सिगरेट का, इट इज़ बेसिकली कॉल्ड द फिल्टर एंड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एंड? फिल्टर एंड। वाइल दिस एंड विच इज़ बर्निंग इज़ कॉल्ड द बर्निंग एंड, जो कि जल रहा होता है, बर्निंग एंड। नाउ नॉर्मली इन द पैसिव स्मोकिंग बेसिकली आप ये कह सकते हैं इट इज़ अ मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। वाई? जब एक पर्सन सिगरेट पी नहीं रहा तो उसको लंग कैंसर क्यों होगा? क्योंकि एक इंसान जो सिगरेट पी रहा होता है वो अपना फ़िल्टर एंड जो है वो मुंह की तरफ रखता है और बर्निंग एंड अपने मुंह से दूर रखता है। अब होता क्या है कि जो इंसान इस बर्निंग एंड के पास खड़ा होगा वो सारा स्मोक इनहेल कर रहा होगा, या दैट इज़ मीन इनहेलेशन, यानी अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक में उसको ले रहा होगा, टेक इन कर रहा होगा, यानी उसका सारा धुआं उसके सांस की नाली में दाखिल हो रहा है। अब ये बर्निंग एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। सो स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ अ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस than its filter end. Therefore, we can say that what is passive smoking? The inhalation of smoke from another smoking is called passive smoking, and also you must know that smoke from the burning end of the cigarette is more dangerous than the filter end. So this will become the definition of passive smoking. There is another term used against or opposite to passive smoking, and this term is called active smoking. Active smoking. So why we are calling a person having a cigarette with its filter and in his hand, in his finger, is called this active smoker? Because he is using the filter and taking the burning end away from his mouth, while a person having or called passive smoker is basically inhaling all that smoke that is releasing from the burning end of the cigarette. So what do you think, which person will get effect more? Obviously the passive smoker. Next heading under the main heading of lung cancer is prevention and control. Prevention and control. So how can you prevent yourself from this disease, or what are the preventive measures a person can take? Now eliminating tobacco smoking is a primary goal in the prevention of lung cancer. अगर पर्सन सिगरेट इस्तेमाल करता है तो सिगरेट नोशी को अगर वो फ़ौरन ख़त्म कर दे, तर्क कर दे, एलिमिनेट कर दे कि आइंदा वो सिगरेट नहीं पिएगा, तो इससे बेहतर कदम, इससे बेहतर स्टेप वो नहीं उठा सकता। क्योंकि अगर वो लंग कैंसर से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि फ़ौरन से बेशतर बल्कि वो कोशिश करे कि बिल्कुल सिगरेट को हाथ भी ना लगाए। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको पता है कि एक यूनाइटेड नेशन का इदारा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि ये गवर्नमेंट को मशवरे देती है अबाउट, और कुछ इस तरह के एडवर्टीज़मेंट बनाए जाते हैं टोबैको एडवर्टाइजिंग के ख़िलाफ़, या यूँ समझ लें कि टोबैको के ख़िलाफ़, ताकि इंसान जो भी वहाँ पर किसी भी मुल्क का बाशिंदा है, रहने वाला है, वो कोशिश करे कि एलिमिनेट कर दे
उसमें इतनी अवेयरनेस आ जाए कि वो दूसरों को भी मशवरा दे, दूसरों को भी समझाए कि सिगरेट नोशी एक ख़तरनाक जो है वो अमल है, इसको फ़ौरी तौर पे इससे छुटकारा हासिल किया जाए। इसके अलावा WHO का ये काम है कि वो गवर्नमेंट को ये एडवाइस भी करती हैं कि ऐसे बैनर्स लगाए जाएं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बच्चों में, स्पेशली जो हमारे नौजवान नस्ल है उनमें उनकी अवेयरनेस उनमें डेवलप करवाई जाए, जिससे अज़ ख़ुद वो कोशिश करें और अगर चाहें तो वो सिगरेट जो है उससे अवॉइड कर सकते हैं, सिगरेट नोशी को छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ये बात करें कि जैसे सिगरेट के जो पैकेट्स होते हैं उन पर अक्सर आपने देखा होगा, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कि वो पैकेट ऐसी होता है, आई थिंक कुछ रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है, उसकी साइड पे आपने नोट किया होगा कि लिखा होता है तंबाकू नोशी या सिगरेट नोशी ख़तरनाक है, ये सेहत के लिए मुज़र है। दैट इज़ सिगरेट is dangerous or injurious for your health. Cigarette smoking is injurious for health. इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं तो इन इंस्ट्रक्शंस का मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोशिश करें कि वो जिसे कहा जाता है ना, से नो टू ड्रग्स, तो जब आप उस चीज़ को कह रहे हैं कि नो हमें इस्तेमाल ही नहीं करनी है, तो आप बना क्यों रहें? आप ऐसे इदारों को अलर्ट कर दें और बाकायदा बताएं कि भाई आप इस चीज़ को जो है वो मुकम्मल बैन कर दें, ताकि या किसी आम इंसान तक ये जो है सिगरेट जो है ना पहुंचे और वो इस बीमारी का शिकार ना हो सके। तो ये हमारा सबसे अहम कदम होगा, ये अहम प्रिवेंशन और कंट्रोल होगा कि हम खुद अपने अंदर आगाही पैदा करें, अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि हमने खुद भी इससे बचना है और दूसरों को भी बचाना है। इसी तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्पेशली लंग कैंसर के बारे में। लंग कैंसर के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको मालूम होने चाहिए। फर्स्ट थिंग, लंग कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स। अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया में सालाना, जिसे हम एनुअली कहते हैं, तो अबाउट 1.3 मिलियन, हाउ मच और हाउ मैनी 1.3 मिलियन जो डेथ्स होती हैं, अमवात होती हैं, उनका जो रीज़न है वो लंग कैंसर को करार दिया गया। ना इन द सिमिलर मैनर, अगर एक पर्सन चाह रहा है कि वो किसी तरह सिगरेट स्मोकिंग से निजात पा ले, तो इफ़ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग द चांस टू डेवलप कैंसर decreases as damage to the lungs, and soon the person get repair his or her lungs and contaminated particles which are responsible for causing cancer are gradually removed. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पर्सन कोशिश करे कि वो स्मोकिंग छोड़ दे, तो इससे इसके चांस क्या डेवलप होंगे उसकी बॉडी के अंदर कि कैंसर का जो चांस है, सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ उसके लंग्स के डैमेज होने का जो एक मार्जिन था, एक रिस्क था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते ये होगा कि अगर वो किसी वजह से डैमेज हो भी गए लंग्स, तो वो रिपेयर हो जाएंगे, वो दुरुस्त हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। और साथ साथ जो उसकी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर कंटामिनेंट पार्टिकल्स थे, आलूदा जो ज़र्रात थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसके लंग्स से रिमूव हो जाएंगे, जिससे उसका जो लंग है वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा, जैसे उसने कभी कोई सिगरेट को कभी हाथ ही नहीं लगाया। तो ये बहुत बड़ा एक जिसे आप कह सकते हैं कि हमारे लिए गोल्डन चांस होता है, या अगर इंसान चाहे, इरादा करे, तो क्या कुछ नहीं कर सकता। ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको लंग कैंसर के हवाले से जानना ज़रूरी थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, number 2, that is in fact related to the cigarette smoking, and it is bad or ill effects of smoking, यानी स्मोकिंग के मनफी असरात जो कि आपकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और ये ज़ाहिर बात है अच्छी तरह असरअंदाज नहीं होते, इनका साइड इफ़ेक्ट होता है, इनके मनफी असरात होते हैं, बुरे असरात होते हैं आपके जिस्म पे, जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि लीडिंग जो प्रॉब्लम आती है स्मोकिंग की, वो कैंसर की तरफ जाती है।
अब कैंसर के बारे में अगर तफसील से बात की जाए तो स्मोकिंग को उन्होंने सबसे बेसिक वजह करार दे दी है कि सिगरेट के धुएं के अंदर जितने कार्सिनोजेंस होते हैं वो बेसिकली किसी और चीज़ में नहीं होते जिनसे कैंसर प्रोड्यूस हो सके। इसी तरह उन्होंने कहा कि टबैको स्मोक के अंदर अगर आपसे कहा जाए कि तकरीबन कितने केमिकल्स होते हैं ओवरऑल, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे कार्सिनोजेंस हो, तो अप्रॉक्सीमेट ओवर 4000 केमिकल्स ऐसे हैं डिफरेंट टाइप्स के जो कि सिगरेट के स्मोक पे या टबैको स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं, जिनमें से तकरीबन 50 यानी ओवर 50 के करीब जो है वो कार्सिनोजेंस हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा ये भी मिसकंसेप्शन है, यानी उनका ये भी गलत तस्वुरात हैं कि स्मोकिंग की वजह से सिर्फ लंग कैंसर होता है। एक्चुअली स्मोकिंग डजंट कॉज ओनली लंग कैंसर, इट कैन कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग कैंसर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, एंड एक्चुअली इट अफेक्ट्स द होल बॉडी and cause number of different types of cancer and different respiratory disorders and different effects on teeth. Your social life even can get affected. So all these problems are due to smoking. So now we are going to study that what are the bad effects of smoking on different parts of your body. Now the first bad effect or ill effect is in the form of this heading: carcinogenic effects on different organs. Smoking may also lead to the cancers in kidneys, oral cavity, larynx, breast, bladder and pancreas. So which organs normally are under the effect of bad smoking? So kidneys, you have to write kidneys. Oral cavity, what is oral cavity? Mouth cavity. Then the respiratory tracts such as larynx, chest area, that is breast, excretory system or part of excretory system called bladder, and pancreas, which is part of your digestive system, and one of the gland as well, digestive gland of your body. So all these parts are actually causing cancer in them due to the bad effect of smoking. So not only, it's not necessary that only the lungs have lung cancer, but also these parts also have this disease, which is due to the bad effect of smoking. Now next heading will be the effects of smoking on respiratory system of your body, respiratory tract or respiratory system. Now normally what happens during smoking? So respiratory system will get affected by many chemicals which are present in tobacco smoke, and mainly bad effect of smoking affects air passageway, which is the part of respiratory system in your body, and it starts from nostrils, nose, then comes larynx, pharynx, first pharynx and then larynx, trachea, bronchi, bronchioles. So all these parts which are present in the air passageway are affected by the smoking, and finally these all parts lead to the disease or some sort of diseases which are commonly called respiratory disorders, like emphysema, along with some other disease such as asthma, bronchitis. Cleared? So all these diseases which are related to the respiratory disorders or respiratory diseases they are called, they are also caused by the smoking. Next effect of smoking is on circulatory system. What is the bad effect of smoking? We have to find out the reason first. There is a chemical present in the cigarette smoke called carbon monoxide. Carbon monoxide.
Now this chemical is responsible for making the less combination of oxygen with hemoglobin. And what is hemoglobin? It is a blood protein. Hemoglobin is a blood protein present in red blood cell. Now what is the function of hemoglobin? Actually it combines with the oxygen present in the blood and forms a compound oxyhemoglobin, HbO2, that is oxyhemoglobin. And in this way, in form of oxyhemoglobin, this oxygen circulates throughout the circulatory system. But unfortunately, carbon monoxide reduces this oxygen carrying capacity of the hemoglobin. So oxygen doesn't supply to every part of the body. So this is due to smoking. While some other chemicals also present in smoke increases the production of platelets in the blood platelets, and due to their increase in number as compared to the normal number, they make the blood viscous, गाढ़ा कर देना. Viscous mean शहद की तरह गाढ़ा हो जाना. And it can lead to a disease which is known as arteriosclerosis, in which the blood becomes viscous. ब्लड गाढ़ा हो जाता है और खून जो है वो नालियों से बहुत तंग होकर, बहुत ही जिसे कहा जाता है नालियों के तंग होने से खून का जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है. बहुत ही नालियाँ जिसे कहते हैं कि तंग हो जाती हैं. क्लियर? चीज़ समझ में आ गई बेटा आपको? तो यहाँ पर इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट बातों को यहाँ पर आपके सामने पेश किया है. एक तो ये कि सर्कुलेटरी सिस्टम पर जो स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो सबसे पहले ये हैं कि सिगरेट स्मोक के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का हार्मफुल इफ़ेक्ट ये है कि ये ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी उसकी बाइंड होने की सलाहियत होती है, जिसके नतीजे में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, उसको कम कर देता है. ये केमिकल उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाती और उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. इसी तरीके से बहुत सारे जो दूसरे केमिकल्स हैं जो कि आपके सिगरेट स्मोक में मौजूद होते हैं, वो बॉडी के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स की तादाद में इजाफ़ा कर देते हैं, यानी इनको इंक्रीज़ कर देते हैं. इंक्रीज़ नॉर्मल से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. नॉर्मल ये तादाद कितनी होती है? 2,50,000 होती है. और ये प्लेटलेट जब 2,50,000 से भी बढ़ जाते हैं तो खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और गाढ़े होने की वजह से जो बीमारी हमें एक तरीके से आर्टरीज़ की नज़र आती हैं वो कौन सी हैं? ये वर्ड ही आया है ना, आर्टीरियो. तो ये आया है, डिजीज़ ऑफ आर्टरी है ये, और आर्टीरियो से ये वर्ड हमने लिया आर्टरी, और ये पूरा नाम हमारा थोड़ा सा बन गया क्योंकि इसमें ब्लड जो है वो आपकी खून की नालियों में बहुत तंग होके बहुत ही मुश्किल से गुजरता है. That's why the name is arteriosclerosis. The fourth heading is effect of smoking on lungs. Individually we are now talking about. As we have seen, the main effect of smoking on lung in the case of lung cancer, but there are some other health or risk factors which are due to the smoking. For example, smokers are at greater risk of developing infections, particularly in the lungs. For example, smoking increases the risk factor of a disease commonly called TB, and scientifically it is given the name tuberculosis. And risk of tuberculosis in the cigarette smoker or active smoker is about or by 2 to 4 times. And the disease of pneumonia in the cigarette smoker, that is pneumonia,
is by 4 times. What is the meaning of this? एक आम इंसान के मुकाबले में अगर हम एक सिगरेट स्मोक करने वाले इंसान को कंपेयर करें तो ट्यूबरकुलोसिस की जो बीमारी है जिसे हम टीबी कहते हैं, ये बीमारी ऐसे इंसानों में जो सिगरेट स्मोकर हैं उनमें 2 से 4 गुना ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह जो निमोनिया का मर्ज़ है वो भी सिगरेट स्मोकर्स में या स्मोकिंग करने वाले लोगों में 4 गुना ज़्यादा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग की वजह से लंग्स जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो कैंसर प्रोड्यूस हो रहा है, कैंसरस मास प्रोड्यूस हो रहे हैं, बल्कि साथ साथ कुछ और भी बीमारियां हैं जैसे जिनमें ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया शामिल हैं। और आप सबको पता होगा कि ये बीमारियां भी लंग्स में ही प्रोड्यूस होती हैं और इनकी रीजंस और इनकी कॉजेज़ को भी स्मोकिंग ही करार दिया गया है। Now the fifth effect of the smoking is effect of smoking on teeth. Effect of smoking on teeth. So what are the ill effects of smoking on teeth? आपके दांत भी सिगरेट स्मोकिंग से मुतासिर होते हैं। किस तरीके से? क्योंकि अगर प्रॉपरली ब्रशिंग करना तो एक दूसरा अमल है कि ब्रश करें तो सफाई होती रहती है, लेकिन फिर भी जो सिगरेट स्मोकिंग करता है उसके दांतों का ख़राब होना, ख़ास तौर पे उसके दांतों का वीक हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना और साथ साथ उस पर स्टेनिंग हो जाना, पीले पड़ जाना, धब्बे पड़ जाना, यानी पीले धब्बे आ जाना, तो ये एक ख़ास किस्म के अलामात हैं जो कि टीथ पर जो है वो असरअंदाज होती हैं या टीथ से नुमायाँ होती हैं। और टूथ लॉस, ये एक और बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्थ रिस्क है, टूथ लॉस, दांत टूट जाना, दांत का ज़ाहिर बात है दांत कमज़ोर हो गया है तो वो कमज़ोर होने के बाद उसके गिरने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और ये तकरीबन 2 to 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होते हैं किसमें? स्मोकर्स में एज़ कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर्स। यानी सिगरेट पीने वालों में तकरीबन 2 से 3 गुना जो चांस होता है टूथ लॉस का वो स्मोकर्स में ज़्यादा होता है और नॉन स्मोकर में ना होने के बराबर, यानी बिल्कुल अगर हम कहें कि होता ही नहीं है तो ये ज़्यादा बेहतर है। Now we are going to complete some short questions which are related to lung cancer and related bad effect of smoking on different parts of body. So in this case we have a first chemical which is present, that is called nicotine. What is nicotine? It is basically a powerful poison. Powerful poison, ये बहुत ही एक ताकतवर जो है वो जहर होता है and was widely used as an insecticide, इसको इस्तेमाल किया जाता था। माजी में इसे इंसेक्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। एंड व्हाट आर इंसेक्टिसाइड्स? इंसेक्टिसाइड्स आर दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल पेस्ट और इंसेक्ट्स, यू कैन ऑल्सो से, जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं तो ज़्यादातर फॉर किलिंग इंसेक्ट्स इसको इस्तेमाल किया जाता था। दवाओं में या स्प्रेज में डाल के इससे इंसेक्ट्स ख़त्म किए जाते थे, इंसेक्ट्स को मारा जाता था। Now when inhaled through tobacco smoking, और चूँकि ये निकोटीन जो है वो मौजूद होता है सिगरेट स्मोक में भी एक केमिकल या पॉइजनस केमिकल के तौर पे, लिहाजा अगर इसको इनहेल कर लिया जाए तो ये फौरी तौर पे जो आपके बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम तक रीच करता है, यानी फौरी तौर पे आपके निज़ाम दौरान खून, जहाँ पर आपका पूरा एक सिस्टम मौजूद है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें खून जो है वो ब्लड आपके सर्कुलेट कर रहा होता है विद ऑक्सीजन एंड डिफरेंट अदर मटेरियल्स, तो वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जो है ये ना सिर्फ ये कि जो आर्टरीज़ की दीवारें होती हैं, यानी वॉल्स ऑफ आर्टरीज़, उनको जो है वो हार्ड कर देता है, वॉल्स ऑफ आर्टरीज़ सख्त हो जाती हैं, बल्कि साथ साथ ये ब्रेन टिश्यूज़ को भी डैमेज करता है। एक तरीके से ये एक नर्वस सिस्टम पर भी आपके एक मनफी असर डालता है। नर्वस सिस्टम को किस तरह से मुतासर करता है कि ये
जो आपके ब्रेन के टिश्यूज़ हैं जिन्हें नर्वस टिश्यूज़ आप कहते हैं, नर्वस टिश्यूज़ विच आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। सो नर्वस टिश्यूज़ को ये बैडली डैमेज कर देता है, जिससे जो है थोड़ी सी थिंकिंग एबिलिटी बंदे की या पर्सन की ख़राब हो जाती है। तो बहुत सारे और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फ़िलहाल आपने इतने ही नोट करने हैं कि व्हाट इज़ निकोटीन एंड व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ निकोटीन ऑन योर बॉडी। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि WHO जो कि यूनाइटेड नेशन का इदारा है और सेहत के मामलात में ये काम करता है, तो इनका कहना ये है कि दुनिया में 2 तरह के ममालिक हैं या कंट्रीज़ हैं, जिनमें एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जबकि दूसरी तरफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम डेवलपिंग कंट्रीज़ का नाम भी देते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, और कुछ शायद इससे भी लो लेवल पर मौजूद हैं। अब हमारे साथ जो सिचुएशन है वो ये है कि इन डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो सिगरेट स्मोकिंग की रेट है, जो एक नॉर्मली हमने एक एस्टिमेट अगर हम लगा के देखें तो स्मोकिंग जो है वो ना होने के बराबर है। यानी लोगों में इतनी अवेयरनेस है तरक्की याफ्ता ममालिक में कि वो स्मोकिंग नहीं करते, इतनी ज़्यादा नहीं करते जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ में करते हैं। यानी तरक्की पजीर ममालिक जो अभी तरक्की के मराहिल से गुज़र रहे हैं, अभी तरक्की उन्होंने की नहीं है, लेकिन जो तरक्की याफ्ता हैं, जो तरक्की कर चुके हैं, यानी अच्छी तरह से उनका मुल्क डेवलप हो चुका है, तो उन ममालिक के निस्बत डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो सिगरेट स्मोकिंग को या सिगरेट का इस्तेमाल की जो आदत है वो बढ़ता चला जा रहा है। और बाकायदा तौर पे 2002 के एस्टिमेशन के मुताबिक 3.4% लोग ऐसे हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो कि इस ख़तरनाक किस्म की आदत से, या जिसे आप कह सकते हैं कि नशे की आदत में मुब्तला हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो हमारे अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, एक आगही जिसे हम कहते हैं। आगही से मुराद ये कि हम अपने आप को ये एहसास दिलाएं कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है हम उसका इस्तेमाल ना करें। सिगरेट स्मोक के नतीजे में अब नॉन स्मोकर्स का थोड़ा सा हम अगर एनालिसिस करें तो नॉन स्मोकर्स वो हैं दोज which are exposed to second hand smoke, that is they are actually not taking smoke but they are passive smokers, and at home or work increase their heart diseases। इनमें यानी जो भी आपके पैसिव स्मोकर्स होते हैं इनके अंदर जो ख़तरनाक बात होती है वो क्या होती है कि हालांकि ये लोग जो हैं वो इनोसेंट हैं, हम इनको ये नहीं कहते कि ये सिगरेट इस्तेमाल करते हैं या सिगरेट का जो है सिगरेट नोशी करते हैं, लेकिन फिर भी इन इंसानों में हार्ट जो डिजीज़ हैं जिनमें ज़्यादातर दिल की बीमारियां शामिल हैं, उनके जो रिस्क हैं हार्ट डिजीज़ रिस्क की हम बात कर रहे हैं, वो तकरीबन 25 से 30% जो है वो बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से एक और एस्टीमेट किया जा रहा है कि लंग कैंसर ऐसे लोगों में जो कि सिगरेट नहीं भी पीते और लेकिन दूसरे स्मोकर से धुएं को मुसलसल इनहेल करते हैं, उनमें लंग कैंसर रिस्क जो है वो तकरीबन 20 से 30% पाया जाता है। यानी यहाँ पर भी पैसिव स्मोकर ख़तरे का यानी ख़तरे की घंटी अपने गिर्द महसूस कर सकते हैं कि उन्हें एक एक्टिव स्मोकर से दूर रहना चाहिए, वो धुआं इनहेल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन सोशल लाइफ पे, तो हमारी एक हेडिंग ये भी बन सकती है इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन, ऑन सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो इफ़ेक्ट क्या है किसी इंसान की जो एक माशरती जहाँ पर वो रहता है उस ज़िंदगी में स्मोकिंग के क्या मनफी असरात होते हैं। तो स्मोकिंग हमारी सोशल लाइफ को इस तरह से डिस्टर्ब कर देता है कि बाकायदा तौर पे स्मोकर जो हैं वो सोशल अनएक्सेप्टेंस जो है उसका शिकार हो जाते हैं, यानी माशरा उनको कबूल नहीं करता। क्या वर्ड है ये? अनएक्सेप्टेंस।
यानी एक तरीके से सोशल स्टिग्मा का शिकार हो जाते हैं। और ये सोशल स्टिग्मा क्या है? ये सोशल स्टिग्मा ये है कि दूसरे लोग ऐसे लोगों को जो सिगरेट पीते हैं डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं, नापसंद करना शुरू हो जाते हैं। और दूसरे लोगों के इस तरह नापसंद करना या नहीं चाहना कि हम उनके आगे जाएं या उनसे बात करें, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी जो है एक तकलीफ़ का बायस बनता है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हम सिगरेट को अवॉइड करें ताकि लोग भी हमें पसंद करें, हमारी अच्छी आदतों से खुश हों, हमारी महफ़िल में या हमारी जो कंपनी है उनको पसंद आए। और यही हमारा ज़िंदगी का भी मकसद है कि अच्छे आदत रखें, अच्छे अखलाक रखें, ताकि ज़िंदगी में हम कामयाब भी रहें। अब लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे, इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड नो टोबैको डे के सिगरेट नोशी से इनकार, सिगरेट नोशी नहीं करनी है। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड वाइड जो डे रखा गया है वो है 31 मई। यानी हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, जिसमें ये बाकायदा तौर पर प्लान किया जाता है, तहैया किया जाता है और अपने आप से एक वादा किया जाता है कि हम इस मूज़ी आदत को, इस ख़राब आदत को नहीं अपनाएंगे और हम इससे दूर रहेंगे, ताकि अब ख़ुद भी खुश रहें, ख़ुद भी सेहतमंद रहें और दूसरे भी हमसे खुश और सेहतमंद रहें। तो मेरी इसी दुआ के साथ कि आप भी इसी तरह खुश रहें, सेहतमंद रहें, और जहाँ तक हो सके घर में अगर कोई सिगरेट स्मोक करता हो तो उसको मना करें, उसको बताएं कि इसके बहुत बैड इफ़ेक्ट हैं, इल इफ़ेक्ट्स हैं और इससे आप जितनी जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। सो ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट, यही आपके हक़ में बेहतर है। खुश रहें, सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।